Hello everyone and welcome to Mentis Galaxy. I am Pratiksha Roy, your chemistry mentor. हमारे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डिस्कस किया था where we discussed about discharge tube, cathode rays and ultimately the discovery of electrons. उसके बाद हमने उसका चार्ज टू मास रेशियो एंड चार्ज डिस्कवरी कैसे हुई थी वो भी देखा था. So for today's video, we will discuss the discovery of protons and neutrons, the other two fundamental units of atom. ये सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिसके बारे में मैंने एटम वाले वीडियो में डिस्कस किया था. So the topic of today's discussion is the discovery of protons and neutrons. So the key points for today's discussion is discovery of anode rays. In our last video, we saw the discovery of cathode rays. So we discussed about the discovery of cathode rays. इस वीडियो में हम एनोड रेस के बारे में पढ़ेंगे. Followed by discovery of protons and then discovery of neutrons. So these are the topics of today's discussion. So let us start today's video on the discovery of protons and neutrons. Our first topic of discussion is anode rays, also known as canal rays. Eugene Goldstein discovered anode rays which contained positively charged particles later identified as protons. प्रोटॉन्स की डिस्कवरी से पहले गोल्डस्टीन नाम के एक साइंटिस्ट ने एनोड रेस डिस्कवर किया था जिसको बाद में स्टडी करके रदरफोर्ड ने प्रोटॉन्स डिस्कवर किया था. So to understand about the discovery of protons, we have to know about the anode rays, which was discovered by Eugene Goldstein. Goldstein discovered anode rays by modifying Thomson's cathode ray discharge tube. उनके हमने देखा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाले टॉपिक में कि जे थॉमसन ने कैथोड रे डिस्कवर किए थे, उनसे उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर किए थे. गोल्डस्टीन ने उसी कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब को थोड़ा मॉडिफाई करके एनोड रेस को डिस्कवर किया है. He observed similar rays from the anode and studied its property. कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब में जैसे कैथोड से कुछ रे निकल रही थी, गोल्डस्टीन ने एनोड रे के डिस्कवरी में भी कुछ सिमिलर रेस देखे जो एनोड से निकल रही थी. दिस इज द ऑपोजिट ऑफ द कैथोड रेस. Goldstein observed that the anode rays contain some kind of positive particles. Thomson saw that there are some negative particles in cathode rays. Similarly, Goldstein observed that anode rays have some kind of positive particles. तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि एनोड रेस कैथोड रेस से एकदम ऑपोजिट है. उस सेम डिस्चार्ज ट्यूब को थोड़ा मॉडिफाई करके गोल्डस्टीन ने एनोड रेस को डिस्कवर किया था. So this is the diagram of Goldstein's discharge tube. It is very similar to J.J. Thomson's discharge tube. Only difference is that the rays are coming out from the anode instead of cathode. If you want to understand more about the discharge tube, you can see the previous video on the discovery of electrons where I have discussed in detail. So this is the same discharge tube made of glass. इसमें दो electrodes है anode cathode and they are connected to a high voltage source and the gas is kept at a low pressure. In my previous video, I had mentioned why high voltage and low pressure gas is mandatory for this setup. So here is the anode, here is the perforated cathode and the rays are coming from the anode. It is just the same as that of cathode ray discharge tube, only this time we are getting rays from the anode instead of the cathode. बिल्कुल कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब की तरह ही है, जस्ट उसका ऑपोजिट है फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द रे. The rest of the setup, the basic setup is the same. Air is generally a non-conductor of electricity. This I had discussed in my last video. I am mentioning it again. However, at very low pressure and at very high voltages, air becomes a good conductor of electricity. Normally, air electricity को conduct नहीं कर पाती
क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी को एयर कंडक्ट कर पाती तो हम सबको ऑल द टाइम करंट शॉक्स लगते हैं, बट वैसा नहीं होता है. सो नॉर्मली एयर कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, but at certain conditions of very very low pressure and very high voltage, air can conduct electricity, and this happens in the case of lightning. जब बिजली कड़कती है तो एयर से ही वो बिजली ट्रैवल होके जाती है. So our mother nature creates a condition of low pressure and high voltage, and so air becomes a good conductor. This same principle has been applied in the anode ray discharge tube. Similarly, this was applied in the cathode ray discharge tube also. So we have to make air a good conductor of electricity. That's why we use a high voltage source and a gas at low pressure. We maintain the gas at low pressure so that the air inside becomes a good conductor of electricity. So these conditions are mandatory to do an experiment with a discharge tube. डिस्चार्ज ट्यूब की मदद से कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर करना हो तो हाई वोल्टेज सोर्स और लो प्रेशर गैस हमको मेंटेन करना जरूरी है. So again, let's see what is a discharge tube in brief, which I had discussed already. A discharge tube is made of glass, कांच का बना होता है, and it contains two metal electrodes sealed in it. मेटल के दो इलेक्ट्रोड अंदर सील किए हुए जाते हैं. The air inside the tube is kept under low pressure condition and the electrodes are connected to a high voltage source. इसका क्या importance है? I discussed in the last slide. To make air a good conductor of electricity, the gas is kept under low pressure condition and the electrodes are connected to a high voltage source. Rays originating from the anode travel to the cathode. यहाँ पे हमारा difference आ रहा है from the cathode rays. Rays originating from anode traveled to the cathode and thus it is known as the anode ray discharge tube. कैथोड रे में रेज कैथोड से निकल रही थी, लेकिन एनोड रे डिस्चार्ज ट्यूब में रेज एनोड से निकल रही है. सो इट इज नोन एज एनोड रे डिस्चार्ज ट्यूब. इट इज जस्ट totally opposite to the cathode ray discharge tube. The underlying principles are the same, but it is just opposite in nature. The perforated cathode discharge tube. कैथोड रेज के टाइम में हमने एनोड में छेद किए थे. इस बार हम एनोड रेज को स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हमने कैथोड को परफोरेट कर दिया या फिर कैथोड में हमने छेद कर दिया. इफ यू सी दिस डायग्राम, we have a perforated cathode. We have made some holes in the cathode. So the perforated cathode discharge tube was devised to confirm that the movement of rays was from anode to cathode. हमने ये छेद क्यों किए थे? जे थॉमसन सर ने भी छेद इसीलिए किए थे, रे की डायरेक्शन समझने के लिए. So this time since we are studying anode rays, हमने उसके opposite वाले इलेक्ट्रोड में छेद कर दिया, which is the cathode. Understand that the ray is coming from anode and moving towards cathode. Holes were made on the cathode and the walls of the tube behind the cathode was coated with zinc sulfide, a phosphorescent material. I had discussed this in our last video. A phosphorescent material is something which absorbs the energy and releases them slowly afterwards. आपके जो ग्लो इन डार्क सब्सटेंसेस होते हैं, जो स्टार्स होते हैं, स्टिकर्स होते हैं, उनमें ये फॉस्फोरेसेंट मटेरियल की एक कोटिंग रहती है. जब आप उनमें लाइट डालते हो, यू आर गिविंग सम फॉर्म ऑफ एनर्जी, दे आर अब्सॉर्बिंग दैट एनर्जी, एंड जब आप लाइट ऑफ कर रहे हो तो वही सेम एनर्जी दे आर रिलीजिंग, ड्यू टू विच दे अपीयर टू बी ग्लोइंग. So this is the concept of a phosphorescent material which we have used in our discharge tube as well. So we made some holes in the cathode which is known as perforated cathode, and उसके पीछे का जो wall है, in that we have done a zinc sulfide coating so that it can glow if I give any form of energy. So now when the discharge rays passed through the perforated cathode and struck the ZNS coating, a bright spot was developed. मतलब एनोड से जो रेज निकल के कैथोड के होल्स के थ्रू पास करके जिंक कोटिंग पे टकरा रही है, मतलब ये कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो ये जिंक कोटिंग अब्सॉर्ब कर रहा है, एंड एक ब्राइट स्पॉट हमको देखने को मिल रहा है. सो वी कैन कंफर्म दैट द रेज आर कमिंग फ्रॉम द एनोड ओनली एंड इट इज पासिंग थ्रू द कैथोड इफ द कैथोड हैज होल्स. अगर उसमें छेद नहीं होते तो वो वहीं पे जाके रुक जाता, बट सिंस देयर आर होल्स इन द कैथोड, इट इज पासिंग थ्रू द होल
and we can see a bright spot due to phosphorescence. थॉमसन सर ने भी यही सब अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी. सिमिलरली गोल्डस्टीन आल्सो followed his path, but this time he noticed the anode rays instead of the cathode rays. The essential principle is totally the same. So the discovery of anode rays was done by Eugene Goldstein. So again we will see a figure. यहाँ पे हमारा anode है which is connected to the positive terminal of the battery, and we have the cathode, perforated cathode क्योंकि यहाँ पे एक छेद है, and it is connected to the negative terminal of the battery. High voltage है, वैक्यूम पंप है to maintain the gas at a low pressure. So यहाँ पे जो नेगेटिव रेज निकल रही है वो कैथोड रेज है क्योंकि कैथोड से भी रेज निकलती है, और जो पॉजिटिव रेज निकल रही है वो है एनोड रेज, एनोड से निकल रही है. It is passing through the perforated cathode and it is making a glow on the screen. Zinc sulfide screen में एक glow हो रहा है यहाँ पे. And this is the entire discharge tube, ये जो कांच का बना है. दिस इज अ स्कीमेटिक डायग्राम. यहाँ पे कैथोड रेज और एनोड रेज को एक साथ दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पे स्टडी हम किसको कर रहे हैं, एनोड रेज. सो वी आर परफोरेटिंग द कैथोड एंड वी आर कोटिंग दिस वॉल and we are observing a glow. So this is again a schematic diagram of the anode ray discharge tube, just the opposite of cathode ray discharge tube. Very simple concept. But now what Eugene Goldstein did extra on his observations, we will see. So यहाँ पे मैंने एक सिंपल डिस्चार्ज ट्यूब के दो डायग्राम्स बनाए हैं. मैंने कुछ लेबल नहीं किया है. आई विल टेल यू व्हाई. So this is one, this will connect to a battery. I have not drawn the battery. So let us say this is the negative terminal and this is the positive terminal. तो अगर नेगेटिव टर्मिनल के साथ कुछ इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है तो वो बन जाता है हमारा कैथोड. आई एम डिनोटिंग इट बाय C. एंड अगर पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कोई इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है तो वो बन जाती है हमारा एनोड, लाइक A. तो इसको हम याद कैसे रखेंगे, इसको याद रखने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है. सी से क्या होता है, कैंसिल. कैंसिल करना मतलब नेगेटिव, समथिंग नेगेटिव मींस यू आर कैंसिलिंग दैट, इट इज नेगेटिव. तो सी से कैंसिल, सी से कैथोड, कैथोड कैंसिल नेगेटिव. ए से होता है एनोड, ए से होता है ऐड. ऐड मतलब कुछ प्लस करना, कुछ पॉजिटिव चीज. तो एनोड ऐड एंड पॉजिटिव. So this is a simple logic that I use to remember the terminals and the names, which you can also apply. Cathode cancel negative, anode add and positive. So anyway, मैंने connect कर दिया है, cathode anode बन चुकी है. तो cathode से कुछ rays निकल रही है. These are the cathode rays. I am denoting them as CR. अब ये जो है हमारा एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो जे थॉमसन ने भी अप्लाई किया था. So let us say this is the positive terminal and this is the negative terminal. तो हमको क्या पता है कि कैथोड रेज में हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो नेगेटिव होते हैं. सो इफ आई अप्लाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होंगे, डेविएट करके पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट करेंगे. ये थॉमसन ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके थे फॉर कैथोड रेज. तो मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी, कैथोड से रेज निकली. जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, so it got deviated towards the positive side or the positive plate of the external electric field. मतलब उनको ये पता चला था कि कैथोड रेज में कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स है. तो ये सेम लॉजिक अब गोल्डस्टीन ने अप्लाई किया. सो लेट अस टेक दिस टर्मिनल एज पॉजिटिव नाउ एंड दिस टर्मिनल एज नेगेटिव. तो अगर पॉजिटिव है मतलब ऐड, A for add and A for anode. Negative मतलब cancel, C for cancel and C for cathode. So अब कुछ rays निकल रही है, obviously they are moving in a straight line. But now Goldstein again applied an external electric field. So suppose this is plus side and this is the negative side. अब उन्होंने क्या देखा कि anode rays are getting
deviated towards the negative terminal. So what Thomson had observed about cathode rays, Goldstein observed the exact opposite. उन्होंने देखा एनोड रेज जो निकल रही थी स्ट्रेट लाइन में जा रही थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में डेविएट करके नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रही है. तो इनसे उनको कंक्लूजन मिला कि एनोड रेज में ऑब्वियसली देयर आर सम पॉजिटिव पार्टिकल्स क्योंकि नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा ऑब्वियसली पॉजिटिव बिकॉज ऑपोजिट्स अट्रैक्ट. So if anode rays are moving towards the negative plate, means that anode rays have positive particles. This Eugene Goldstein observed from his experiments. So if we want to draw clearly what Eugene Goldstein did, positive add anode, negative cancel cathode. This is the straight line ray in the absence of an electric field. Now if we apply an electric field, we see that the anode rays are getting deviated and they are moving towards the negative terminal of the electric field. So this is what observed by Goldstein. ये गोल्डस्टीन ने ऑब्जर्व किया था कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो एनोड रेज का कैसा बिहेवियर रहेगा. So since it was getting attracted towards the negative plate, it proved that anode rays contain some positive particles. In the absence of an electric field, anode rays travel in a straight line. जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तब एनोड रेज स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करते हैं. In the presence of an electric field, anode rays show a deviation from the usual path and move towards the negative plate of the external electric field. जब हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी तो एनोड रेज अपना स्ट्रेट लाइन छोड़ के डिफ्लेक्ट कर गई towards the negative plate of the electric field. Thus, it was observed that anode rays contain positively charged particles. क्योंकि अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते तो वो कभी भी नेगेटिव प्लेट की तरफ नहीं जाते क्योंकि जो सेम होते हैं वो रिपेल करते हैं एंड ऑपोजिट जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं. सो नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रही है मतलब कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है which are affected in the presence of an electric field. So this was also observed by Goldstein. As you can understand कि बहुत ही पास आ चुके थे वो प्रोटॉन डिस्कवरी के बट he could not discover protons. उन्होंने इससे ज्यादा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया कुछ ऑब्जर्वेशंस नहीं निकाली. So this is what he observed. So from his canal ray experiments जिसको आप anode rays भी कह सकते हो, Goldstein observed that canal rays, that is anode rays, start from the anode and move towards the cathode. And the second observation was the anode rays are affected in the presence of an electric field and they show a deflection towards negative plate. ये उनका सेकंड ऑब्जर्वेशन था. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कि एनोड रेज होते हैं, एनोड से भी कुछ रेज निकल के कैथोड की तरफ जाते हैं और अगर उन रेज को आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में डालेंगे तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा. These are the two observations that Goldstein did with his canal ray experiments. अब इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को स्टडी करके प्रोटॉन्स की डिस्कवरी की गई थी. So now we will move to the discovery of protons. That is canal ray से कैसे प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई. The proton was discovered by Ernest Rutherford in 1917 by studying Goldstein's canal rays. तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड है जिनको ये क्रेडिट दिया जाता है प्रोटॉन की डिस्कवरी का, लेकिन उन्होंने ये किया गोल्डस्टीन के कैनाल रेस को स्टडी करके. सो द मेन पर्सन हु स्टार्टेड दिस एक्सपेरिमेंट वाज गोल्डस्टीन, लेकिन इसको खत्म करके डिस्कवरी की हमारे अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने. Rutherford is credited with the discovery of protons. He made the discovery by studying canal rays from the experiments of E. Goldstein. E. Goldstein जितना एक्सपेरिमेंट करके गए थे उसी को मॉडिफाई करके और ज्यादा स्टडी करके he ultimately discovered the protons. The most popular experiment of Rutherford is the gold foil experiment or the scattering experiment, using which he proposed the nuclear model of an atom.
प्रोटॉन डिस्कवरी से ज्यादा उनका गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट फेमस है, जिसको यूज करके उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन किया था, या फिर उन्होंने एक थ्योरी दी थी कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है. दिस वाज मोर फेमस देन इज proton discovery, the gold foil experiment, which we will study in our upcoming classes when we will study about nuclear model. So he discovered protons by studying the canal rays of Goldstein, and ultimately he did a gold foil experiment using which उन्होंने एक न्यूक्लियर मॉडल को प्रपोज किया था एटम के लिए. Rutherford studied the canal rays which were discovered by E. Goldstein, जो हमने स्टडी किया अभी, and determined the presence of positively charged particles. तो रदरफोर्ड ने उन्हीं कनाल रेस को स्टडी किया. गोल्डस्टीन इतना बता के गए थे कि कुछ पॉजिटिव पार्टिकल्स है, तो उन्होंने उसको स्टडी किया. He repeated his modified experiments. कुछ modifications उन्होंने obviously किए होंगे with various gases. Gases उन्होंने change की, electrodes उन्होंने change की, and formed a set of observations. जो observations उनको मिले, he noted them down. The smallest and lightest positive ion was obtained from hydrogen and was called proton. तो जब उन्होंने ये सारे experiments हाइड्रोजन को यूज करके किए थे, he got the smallest and lightest positive ion, and he called it proton. तो हाइड्रोजन को स्टडी करके अल्टीमेटली he discovered proton, but he used the same principles as Thomson, which was modified by Goldstein to get the anode rays. तो हमने ये स्ट्रक्चर ऑब्वियसली, जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी है, दे आर familiar with this structure. This is a discharge tube, a real discharge tube, not a diagram. This is a real discharge tube, but this has something interesting inside, which is the paddle wheel. इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रोड्स तो है ही, लेकिन एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट है, विच इज द पैडल व्हील. इसका क्या काम है, वी विल स्टडी. Those who have seen my last video, they already know what is coming. So this is the schematic diagram of the previous photo. A discharge tube with a paddle wheel. यहाँ पे है एनोड, कैथोड, एनोड रेज निकल रही है, और जब एनोड रेज व्हील से टकरा रही है तो द व्हील इज रोटेटिंग. The wheel rotates when anode rays are present. This also happened in the case of cathode rays. Cathode rays निकल रही थी तब भी wheel rotate कर रही है, लेकिन अब जब anode rays निकल रही है तब भी wheel rotate ही कर रही है. A discharge tube with an enclosed wheel was used to study the anode rays. तो हमारे रदरफोर्ड ने क्या किया कि उन्होंने वही पैडल व्हील वाले डिस्चार्ज ट्यूब को स्टडी किया, which was studied by J. Thomson also. It was observed that the wheel rotates when anode rays are present. जब भी anode rays present होती है तो wheel हमारा rotate करता है. So obviously, why does the wheel rotate? Hence, it was determined that anode rays contain some kind of positively charged particles which strike the wheel and rotate its blade. Obviously, there are some kind of particles, something in the anode rays which is hitting the wheel and it is making it rotate. So this was observed in case of cathode rays also, and similarly it is observed in the case of anode ray also. So it was confirmed that anode rays contain some kind of positively charged particles. Positive कुछ होता है वो obviously Goldstein हमको बता के गए थे using the electric field. But to understand if there are some particles present, he used the paddle wheel. Rutherford used the paddle wheel. Goldstein did not use the paddle wheel. Rutherford used the paddle wheel and he saw that there are some positively charged particles. अब रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से क्या ऑब्जर्वेशंस किए? द मास ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स डिपेंडेड ऑन द नेचर ऑफ द गैस and the charge to mass ratio also depended on the gas from which they originate. ये ऑब्जर्वेशन जे थॉमसन ने नहीं किया था, उनको एक कांस्टेंट वैल्यू ही मिली थी, उनको ऐसे मास चेंज नहीं हो रहा था जब हम डिफरेंट गैसेस ले रहे थे. लेकिन रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया, जो मास है इन पार्टिकल्स का, वो जो गैस हम ले रहे हैं अंदर, कोई भी गैस ले रहे हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, उनके अकॉर्डिंग वो मास
चेंज हो रही है। तो अगर मास चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली द चार्ज टू मास रेशियो विल आल्सो चेंज. This was a new observation which was not done by Thomson in case of electrons. So this was a new observation that the mass is not independent. It is dependent on the nature of the gas. Particles carried a multiple of the fundamental unit of electric charge. ये आर मिलिकन डिस्कवर किए थे जब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. ही ऑल्सो ऑब्जर्व दिस that some particles carried a multiple of the fundamental unit of electric charge. इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसका ही कोई मल्टीपल, 1 into electric charge, 2 into electric charge, like this he observed. Rutherford also observed, and when R. Millikan did his oil drop experiment, he had also observed. The behavior of these particles were completely opposite to that of the electrons. ये एक बहुत ही बढ़िया ऑब्जर्वेशन की उन्होंने कि इनका जो ये पॉजिटिव पार्टिकल्स का जो बिहेवियर है, जो प्रॉपर्टीज है, वो कंप्लीटली ऑपोजिट है इलेक्ट्रॉन्स के. चार्ज उनका ऑपोजिट है, मास उनका ज्यादा है. So the behavior of these particles are completely opposite to that of electrons. So Rutherford के observations क्या थे? That the mass is dependent on the nature of gas. Some particles carried a multiple of the fundamental unit of electric charge. मतलब एक fundamental unit है of the charge. And the behavior of these positively charged particles are completely opposite to electrons. These were the observations of Rutherford. एंड इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को यूज करके ही कंक्लूडेड कि जो पार्टिकल रहता है एनोड रेज में वो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है एंड उसको उन्होंने नाम दिया प्रोटॉन. सो अ प्रोटॉन इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ एन एटम एंड इट इज पॉजिटिवली चार्ज. द चार्ज ऑन अ प्रोटॉन, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके चार्ज भी हमने कैलकुलेट किया. हमने नहीं, साइंटिस्ट ने किए थे हमारे. So the charge on a proton is plus 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb. If you go to my last video and if you see the charge on an electron is also the same, उसके सामने एक नेगेटिव साइन रहता है. प्रोटॉन हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसलिए इसका साइन है पॉजिटिव, प्लस 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb, which is equal in magnitude, obviously not in sign, क्योंकि उनका टाइप ही अलग है. ये पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज था, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम है. इट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज द सेम. जब एक प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का सेम चार्ज होता है, सिर्फ साइन ऑपोजिट होती है. The mass of a proton is 1.672 into 10 to the power minus 27 kg. काफी कम है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन के साथ ये मास कंपेयर करो तो ज्यादा ही है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन वाज 9.1 into 10 to the power minus 31. So minus 31 की जगह यहाँ पे minus 27 है. So if you compare with electrons, then it is pretty heavy, but still it is very very light. हम इसको imagine ही नहीं कर सकते, obviously we can't see it, but it is so small that we can't imagine also this weight. And it is roughly 1836 times the mass of an electron. तो इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स ये भारी है. मतलब इलेक्ट्रॉन कितना ज्यादा हल्का है. दैट इज व्हाई वी डू नॉट कंसिडर द इलेक्ट्रॉन्स मास इन द एटॉमिक मास. So proton has some mass which is quite greater than the mass of an electron. In a neutral atom, the number of protons is always equal to the number of electrons. Obviously common sense है, प्रोटॉन है पॉजिटिव और हमारे इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव. अगर एक एटम को न्यूट्रल रहना है, मतलब उसका कोई चार्ज नहीं है, तो जितना पॉजिटिव होना चाहिए तो उतना नेगेटिव भी होना चाहिए. इसलिए एक न्यूट्रल एटम में जितना प्रोटॉन रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम, दिस इज अ वेरी की वर्ड, न्यूट्रल एटम. In a neutral atom, the number of protons will always be equal to the number of electrons. If the number is not same, then the atom would not be neutral. Neutral शब्द है, मतलब जो चार्ज है, चार्ज जीरो है. चार्ज जीरो करने के लिए पॉजिटिव जितना है उतना ही नेगेटिव को होना चाहिए. तो न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हमारा सेम रहता है ऑलवेज.
प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज, जिसका चार्ज है प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसका मास है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। और न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम रहता है। So this is all about our proton. Now we will see about the discovery of neutrons, because there was still some questions unanswered after the discovery of protons or electrons. Protons और electrons के बाद कुछ साइंटिस्ट ने सोचा कि we have completed subatomic particles, हमने सारे डिस्कस कर लिए, सब डिस्कवर हो गया है, बट कुछ चीजें फिर भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। दिस इज वाई द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन वाज डन। आप किसी चीज के पीछे तभी दिमाग लगाते हो जब वो सॉल्व नहीं हो पाती। इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, तभी आप सोचते हो कि व्हाट एम आई मिसिंग, क्या मिसिंग डेटा है यहाँ पे। सिमिलरली द साइंटिस्ट कुड नॉट सॉल्व सम पॉइंट्स अबाउट द एटम which led to the discovery of neutrons. So now we will study about the discovery of neutrons. The neutron was discovered by James Chadwick in 1932 through an experiment involving the bombardment of beryllium with alpha particles. This is a type of nuclear reaction that James Chadwick did. He bombarded beryllium with alpha particles. And he received the Nobel Prize in 1935 for the discovery of neutron and for his experiments. So, the neutron was discovered by James Chadwick, and he did it with the bombardment of beryllium with alpha particles, which is a nuclear reaction. Nuclear reactions are very dangerous, not like our simple chemical reactions. न्यूक्लियर रिएक्शंस में एटम बनते हैं, एटम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं होते, दे आर बेसिकली रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, कोलिशन होता है, बॉम्बार्डमेंट होती है, फिजन, फ्यूजन, ये सारे न्यूक्लियर रिएक्शन के टाइप्स है। बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है, बेसिकली द एटम्स दैट आर रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये जो एटॉमिक बॉम्ब्स है, ये सारे न्यूक्लियर रिएक्शंस से ही चलते हैं। These are not ordinary reactions. You cannot do them very simply. Very complicated and very, very dangerous reactions are nuclear reaction, जिसको करके जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। Neutrons were discovered by James Chadwick in 1932. He performed an experiment where he bombarded beryllium with alpha particles. बॉम्बार्डमेंट मतलब बेरिलियम एटम को उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स के साथ कोलिजन किया था, मतलब अल्फा पार्टिकल्स को किया था बेरिलियम से, एंड यही था उनका एक्सपेरिमेंट। बॉम्बार्डमेंट मतलब किसी दो चीजों को आपस में कोलाइड करना, उनको टकराना, तो इट इज कॉल्ड बॉम्बार्डमेंट। अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी वाज रिलीज, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई थी, क्योंकि ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। न्यूक्लियर रिएक्शन में हमेशा बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। A huge amount of energy was released that contained electrically neutral particles. क्योंकि ये न्यूट्रल पार्टिकल्स थे, तो चैडविक ने इनको नाम दिया न्यूट्रॉन्स। तो इनका जो ये न्यूक्लियर रिएक्शन किया उन्होंने, बॉम्बार्डमेंट ऑफ बेरिलियम विद अल्फा पार्टिकल, बहुत ज्यादा एनर्जी निकली। उसी एनर्जी को उन्होंने ट्रैप करके जब स्टडी किया, तो ही फाउंड दैट इट कंटेन सम पार्टिकल्स विच आर न्यूट्रल, जिनका कोई चार्ज नहीं है, so he named them neutrons. And this was all done by James Chadwick in 1932. But ये उनके दिमाग में आया कैसे कि न्यूट्रॉन भी कुछ एग्जिस्ट करता है। So if we take the example of hydrogen, हर एलिमेंट का एक हमारा मास नंबर रहता है, एक रहता है हमारा एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन का मास नंबर भी 1 था, एटॉमिक नंबर भी 1 है। जब हमने हाइड्रोजन के बारे में स्टडी किया, साइंटिस्ट्स ने, उन्होंने देखा कि एक प्रोटॉन है, और अगर एक प्रोटॉन है तो ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन होना ही है। एक इलेक्ट्रॉन है, E प्लस बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, E माइनस बिकॉज ऑफ द नेगेटिव माइनस। तो हाइड्रोजन के लिए उन्होंने देखा कि एक प्रोटॉन है, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर 1 है। प्रोटॉन्स ही एटॉमिक नंबर डिसाइड करती है। दिस आई हैड डिस्कस्ड इन द डिस्कशन ऑफ एटम इन दैट वीडियो।
तो ऑब्वियसली अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो एक प्रोटॉन तो जरूर है, अगर एक प्रोटॉन है उसको न्यूट्रल रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का भी होना जरूरी है। अब इनका मास भी 1 है, तो साइंटिस्ट ने सोचा कि ये जो एक प्रोटॉन है दैट इज ओनली कंट्रीब्यूटिंग टू द मास, मतलब प्रोटॉन्स ओनली कंट्रीब्यूट टू द मास ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एटम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो इतना कम है वी कैन नॉट कंसिडर इट। So for a long time, because of hydrogen, scientists thought that only protons are responsible for atomic mass. लेकिन अगर आप कोई भी दूसरा एलिमेंट ले ले, suppose I am taking helium, just the next element after hydrogen in the periodic table because its atomic number is, helium का atomic mass है 4. So अगर 2 उनका है atomic number, तो 2 प्रोटॉन तो जरूर है, 2 प्रोटॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, 2 प्रोटॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो अगर हम हीलियम को कंसिडर करें, उनका एटॉमिक नंबर है 2, तो मतलब 2 प्रोटॉन्स है और इसको न्यूट्रल रखने के लिए हम 2 इलेक्ट्रॉन्स भी लेंगे। लेकिन अब इनका चार्ज तो हो गया, चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, लेकिन इनका मास जो नंबर है ये है 4, बट वी हैव प्रोटॉन्स ओनली 2। तो हाइड्रोजन में केस में एक प्रोटॉन को 1 यूनिट ऑफ मास कंसिडर किया गया था। एक प्रोटॉन है इसलिए उसका मास नंबर 1 है, एक प्रोटॉन का मास 1 यूनिट, तो इसलिए उसका मास है 1। लेकिन अगर हीलियम को हम देखें तो यहाँ पे है 2 प्रोटॉन्स, 2 से ज्यादा प्रोटॉन्स नहीं है बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर इज 2, सो देयर आर 2 प्रोटॉन्स ओनली। सो 2 प्रोटॉन्स शुड बी इक्वल टू 2 यूनिट्स ऑफ मास, लेकिन यहाँ पे तो मास है 4, तो बाकी के 2 यूनिट कहाँ गए, क्योंकि वो 2 यूनिट तो इलेक्ट्रॉन से नहीं आ रहे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैव वेरी वेरी लेस मास, उनका मास नेग्लिजिबल है, कंसिडर ही नहीं किया जाता। तो 2 प्रोटॉन से इसका हम मास को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हैं। सिमिलरली इफ यू टेक another element, I have taken sodium. You can try it with any element. Let's take sodium, whose atomic number is 11, mass number is 23. 11 atomic number means 11 protons. Obviously, 11 electrons. इसका तो कोई मास का कहानी है ही नहीं, मास की कहानी. So we are cancelling this. So if there are 11 protons, the mass should be 11 unit by hydrogen's logic. But यहाँ पे कितना है, 23 है उसका मास, 23. 23 minus 11 if you do, it will be 12, मतलब 12 यूनिट मास हमारा है मिसिंग। यहाँ पे 4 minus 2, 2 यूनिट मास हमारा मिसिंग है। मतलब यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई और पार्टिकल है जो चार्ज में इंटरफेयर नहीं कर रहा, क्योंकि चार्ज न्यूट्रल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर कर रहे हैं, प्रोटॉन का पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव है, वो दोनों सेम अमाउंट में रहते हैं, इसलिए एक एटम, एक एलिमेंट ओवरऑल न्यूट्रल रहता है। बट ये जो मास नंबर है, ये मास नंबर हम मैच नहीं कर पा रहे जस्ट यूजिंग द प्रोटॉन्स। So there must be something else which is contributing only to the mass of an atom, not to the charge. There has to be something else. यहाँ पे 2 यूनिट मिसिंग थे, यहाँ पे 12 यूनिट मिसिंग है. So there is something which is very heavy, a little heavier than the protons also, which is contributing to the mass. And this question, ये जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया साइंटिस्ट के दिमाग में, this question mark was finally answered by James Chadwick when he discovered neutrons to explain the missing amount of mass in an atom. तो यही सवाल था जिसका आंसर ढूंढते ढूंढते जेम्स चैडविक फाइनली डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स। ये एक्स्ट्रा जो मिसिंग मास है वो कहाँ से, मतलब वो क्यों है, ये मास मिसिंग क्यों है, what is the particle that is responsible for this extra mass. So this is the experimental setup that James Chadwick had used. This is a polonium source. यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकल रही है, ये है हमारा बेरिलियम. The alpha particles are hitting the beryllium and it is ejecting some energy.
ये N और P क्या है दैट आई विल एक्सप्लेन, बट इट इज emitting some energy. तब वहां पे उन्होंने एक पैराफिन वैक्स लगाया एंड ही सॉ some other forms of energy which he calculated using a detector. यहाँ पे ग्रेगर काउंटर यूज हुआ है, he used detector. So basically what we have to know now that when alpha particles were bombarded with beryllium, form of energy was released. Some form of energy was released. Polonium source was taken to generate alpha particles, which were used in the bombardment with beryllium. Polonium source है, उससे alpha particles निकल रही है and they are hitting the beryllium. This bombardment produced a highly penetrating radiation. तो कुछ रेस, कुछ एनर्जी जो बहुत पेनिट्रेटिंग है, वो फॉर्म हुआ था. That was not reflected by electric or magnetic fields. बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन. इसके पहले कैथोड रे, एनोड रे सब डिफ्लेक्ट कर रहे थे. जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे थे, they were deflecting. But this radiation did not deflect by electric field or magnetic field. A very, very important observation. Through careful analysis of the collisions of this radiation with paraffin wax, it was concluded that the radiation consisted of neutral particles with a mass approximately equal to that of a proton. तो ये जो रेडिएशन पैराफिन वैक्स से यहाँ पे टकरा रही थी, ये जो पैराफिन वैक्स, उसको स्टडी करके ये कंक्लूजन साइंटिस्ट को मिला, जेम्स चैडविक ने निकाला कि जो रेडिएशन है उनमें न्यूट्रल पार्टिकल्स है, मतलब जो पार्टिकल है उनका कोई चार्ज नहीं है. प्रोटॉन्स जैसा पॉजिटिव चार्ज में नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स जैसा नेगेटिव चार्ज में नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, और वो काफी भारी है. उनका मास ऑलमोस्ट प्रोटॉन के लगभग इक्वल है. So these were the observations made by Chadwick in the discovery of neutrons. So what happened in the bombardment can be explained by this simple equation. So this is beryllium, atomic number है 4, mass number है 9, और ये जो है हीलियम, इसी को कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स. अल्फा पार्टिकल्स को हीलियम के एटम से ही डिनोट किया जाता है. हीलियम एटम्स आर बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स. बेरिलियम मास नंबर 9, एटॉमिक नंबर 4, एंड हीलियम मास नंबर 4, एटॉमिक नंबर 2. तो ये दोनों आपस में बॉम्बार्ड हो रही है, टकरा रही है. टकरा के क्या फॉर्म हुआ? हमारा कार्बन, whose atomic number is 6 and mass number is 12. ये सारे इंफॉर्मेशन आपको अगर ऑलरेडी पता नहीं है तो आपको पीरियोडिक टेबल से मिल जाएगी. इफ यू ओपन द पीरियोडिक टेबल यू कैन सी ऑल द एटॉमिक नंबर्स एंड द मास नंबर्स आल्सो. इसको पहले हम इग्नोर करते हैं, हमको कार्बन यहाँ पे फॉर्म हुआ है. तो 4 + 2 6, मतलब बेरिलियम और हीलियम, इनको हमने जब बॉम्बार्ड किया, ये दोनों कंबाइन करके हमारा कार्बन बनाया. 4 + 2 6, ये इक्वल हो रहा है 4. एटॉमिक नंबर इसका 4 था, इसका 2 था, 6. बट 9 + 4 इज नॉट इक्वल टू 12, इट इज इक्वल टू 13. 9 + 4 इज इक्वल टू 13. लेकिन कार्बन का तो हम जानते हैं कि मास होता है, मास नंबर है 12. तो हम जो ये एनर्जी निकल रही है, इसमें कुछ पार्टिकल है जिसका एक मास कंट्रीब्यूशन है. इसका कोई चार्ज नहीं है, ऑब्वियसली कोई चार्ज नहीं है, बट देयर इज सम मास over here in this particle. We still do not know what this particle is, लेकिन कुछ तो ऐसा पार्टिकल है जिसका कोई चार्ज नहीं है लेकिन मास तो जरूर है. So again 4 + 2 6, which is we are getting carbon, but 9 + 4 हमको जो 13 मिलना चाहिए था, हमको यहाँ पे मिल रहा है 12. So it is matching, carbon is matching, its atomic number, mass number both are matching. एंड जो रेडिएशन जो बहुत हाई एनर्जी निकल रही है उसमें कुछ तो है जिसका कोई चार्ज तो नहीं है लेकिन एक मास जरूर है. So if you want to understand what was happening, जब ये बॉम्बार्ड हो रहा था तो क्या हो रहा था, you can understand it by this equation. This is very important. तो यहाँ से जो रेडिएशन निकली उसमें कोई पार्टिकल है, which is this particle. So let us see what is this particle. So पहले एक और स्कीमेटिक डायग्राम देख लेते हैं. तो यहाँ पे पैराफिन वैक्स हमने यूज नहीं की है फर्स्ट में. अल्फा पार्टिकल्स निकल रही है, बेरिलियम से टकराई है,
कुछ रेडिएशन निकल रही है। उस रेडिएशन में क्या है, जो हम देखे लास्ट स्लाइड में, ये है। बट वी स्टिल डू नॉट नो, अभी हमें इतना पता है कि अल्फा पार्टिकल्स बेरिलियम से टकरा के कुछ रेडिएशन निकल रही है। अब हमने क्या किया, एक पैराफिन वैक्स लगा दी विच विल ट्रैप दिस रेडिएशन। तो पैराफिन वैक्स लगा दी, और पैराफिन वैक्स में हमने क्या लगाया है, हमने कुछ प्रोटॉन्स लगा दिए। प्रोटॉन्स का ये सिंबल होता है क्योंकि अगर आप हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो एक प्रोटॉन ही बचता है, इसलिए प्रोटॉन का ये है सिंबल। जैसा अल्फा पार्टिकल्स का सिंबल आपने देखा हीलियम एटम होता है, वैसे ही प्रोटॉन का सिंबल है H+। H+ से डिनोट किया जाता है। तो अल्फा पार्टिकल बेरिलियम से टकरा के कुछ रेडिएशंस निकल रही थी, अच्छी बात है। तो अब हमने एक प्रोटॉन्स इन्फ्यूज्ड पैराफिन वैक्स जब लगाया है यहाँ पे, तो हमने देखा कि यहाँ से अरे प्रोटॉन्स निकल रही है। प्रोटॉन्स ही निकल रही है, ये हमको कैसे पता चला? ऑब्वियसली अगर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, अगर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो ये ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही बेंड होगी। एंड यू कैन ऑल्सो डिटेक्ट देम यूजिंग अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड डिटेक्टर लाइक अ ग्रेगर काउंटर, एनीथिंग एल्स। तो अल्फा पार्टिकल से जो रेडिएशन निकल रही थी उनका जब हमने पैराफिन वैक्स के साथ उनको ट्रैप किया या फिर बॉम्बार्ड किया, तो वहां से प्रोटॉन्स निकल गई। So this was the total experiment that was done by Chadwick. But इससे हमको क्या फायदा हुआ? Let us see that. The radiation emitted in the experiment was projected on a proton-rich paraffin block. मतलब ये जो पैराफिन वैक्स है इसमें प्रोटॉन भर भर के है, प्रोटॉन रिच पैराफिन वैक्स। द रेडिएशन एमिटेड इन द एक्सपेरिमेंट वाज प्रोजेक्टेड, मतलब उसको हमने एक प्रोटॉन रिच पैराफिन ब्लॉक के ऊपर डाला, उसको हमने प्रोजेक्ट किया, कॉजिंग द प्रोटॉन्स टू बी एमिटेड। पैराफिन वैक्स में प्रोटॉन्स थे तो वो निकल गए जब हमने हमारा इनिशियल रेडिएशन उस ब्लॉक पे हमने डाला। द मोमेंटम एंड द एनर्जी ऑफ द एमिटेड प्रोटॉन्स वर स्टडीड यूजिंग अ डिटेक्टर। मतलब अब प्रोटॉन जो निकल रहे हैं उनका क्या स्पीड है, उनका क्या एनर्जी है, वो स्टडी किया गया यूजिंग अ डिटेक्टर। Chadwick noted that neutral radiation must contain some heavier particles which are responsible for the ejection and movement of protons. तो यहाँ पे जो रेडिएशंस थे उनमें जो पार्टिकल्स है काफी भारी है, क्योंकि अगर वो भारी नहीं है तो वो मतलब जोर से टकराए यहाँ पे पैराफिन वैक्स पे, और इतना जोर से वो टकराए, वो एनर्जी उन्होंने प्रोटॉन्स के पीछे लगा दी। मतलब इनकी जो एनर्जी थी वो एनर्जी उन्होंने प्रोटॉन्स के ऊपर ट्रांसफर कर दी और वो एनर्जी लेके हमारे प्रोटॉन निकल पड़े। तो दैट मीन्स इनका कोई मास है, ये हैवी है। अगर आप कोई हैवी ऑब्जेक्ट, अगर आप पत्थर किसी के ऊपर मारेंगे तो ऑब्वियसली उसको चोट लगेगी, बट अगर आप एक रबर बॉल या फिर कुछ हल्का कुछ फेंकेंगे तो ऑब्वियसली द अदर पर्सन विल नॉट बी हर्ट। तो जितना ज्यादा मास है उस मास को उन्होंने एनर्जी पे कन्वर्ट कर दिया और उसी एनर्जी को लेके प्रोटॉन्स यहाँ से इजेक्ट हो गए। तो ऑब्वियसली ये जो रेडिएशन है हमारा अननोन रेडिएशन, इसमें जो पार्टिकल्स है वो काफी भारी है, उसका कोई सब्सटैंशियल मास है, एंड दैट इज व्हाट चैडविक ऑब्जर्व। Chadwick noted that the neutral radiation must contain some heavier particles, कोई भारी particles है which are responsible for the ejection and the movement of protons. मतलब वो भारी particles ही ये पैराफिन ब्लॉक से टकरा के वहां से हमारे प्रोटॉन्स को इजेक्ट कर दिया। So this is how Chadwick concluded कि उन रेडिएशन में कोई न्यूट्रल पार्टिकल है जिनका कोई चार्ज तो नहीं है लेकिन काफी अच्छा खासा मास है, मतलब जो मास इतना ज्यादा है कि वो प्रोटॉन को मतलब निकालने में कामयाब रही। सो दिस इज हाउ चैडविक फाइनली डिस्कवर्ड अबाउट न्यूट्रॉन्स। कि न्यूट्रॉन नाम का कोई, न्यूट्रॉन नाम उन्होंने ही दिया है बिकॉज इट इज न्यूट्रल, कि कोई एक एक्स्ट्रा पार्टिकल है जो मास में कंट्रीब्यूट करती है एटम्स। तो thus a neutron is a fundamental unit of an atom and it is neutral। न्यूट्रल है इसलिए उसका नाम है न्यूट्रॉन। A neutron has no charge, कोई चार्ज नहीं होता, and it is mainly responsible for the mass of an atom along with protons। प्रोटॉन्स भी रहते हैं ऑब्वियसली मास में,
लेकिन प्रोटॉन्स के साथ न्यूट्रॉन्स रह के भी मास नंबर कंट्रीब्यूट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन उनका कोई चार्ज नहीं होता, दे आर न्यूट्रल। Now the mass of proton is 1.675 into 10 to the power minus 27 kg. Almost equal to the mass of proton, just slightly greater. प्रोटॉन का शायद 1.672 था, यहाँ पे 1.675 है। मैंने राउंड ऑफ करके लिखा है, बट इफ यू सी इट इज स्लाइटली ग्रेटर देन द मास ऑफ प्रोटॉन। तो यही दोनों मिलके एक एटम का जो मास नंबर होता है वहां पे कंट्रीब्यूट करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है बहुत बहुत नेग्लिजिबल है, तो उनका मास हम कंसिडर नहीं करते, बट सिर्फ प्रोटॉन के मास से आप एक एटॉमिक मास को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, जो मास नंबर है एटम का। So neutrons also contribute to the mass of an atom, and so it is a fundamental unit. It is a fundamental subatomic particle, and it is neutral. So we have completed and studied about the discovery of electrons, protons, and neutrons, the three main subatomic particles. So this is a summary table which you can use to compare the three subatomic particles, properties of fundamental particles. पहला है इलेक्ट्रॉन, जिसका सिंबल है E, या फिर आप कह सकते हो E माइनस। चार्ज इनका है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, माइनस साइन है बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव। रिलेटिव चार्ज, इसको आप -1 करके लिख सकते हो, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का एक नेगेटिव चार्ज वो डिनोट करता है। दिस इज रिलेटिव चार्ज, नॉट द एब्सोल्यूट चार्ज। रिलेटिव किसके किसके साथ रिलेटिव? अगर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ रिलेट करो तो इसका -1 चार्ज है। मास इसका बहुत ही कम, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, which we have studied. This is in kg. अगर आप यू में देखें, यूनिफाइड मास यूनिट्स में देखें, तो इसका है 0.00054। दिस मास इज द kg वाला मास इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड अप्रोक्सीमेट मास 0 है, क्योंकि इसके मास को हम कंसिडर नहीं करते इन द मास नंबर ऑफ एन एटम। नाउ प्रोटॉन्स, द सिंबल इज p, और p प्लस यू कैन राइट। सेम एब्सोल्यूट चार्ज एज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम चार्ज है, सिर्फ पॉजिटिव साइन है बिकॉज प्रोटॉन इज पॉजिटिव। तो रिलेटिव चार्जेस +1, अगर एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक नेगेटिव चार्ज, एक प्रोटॉन मतलब एक पॉजिटिव चार्ज। मास इसका देखिए इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। द मास, दिस द मास इन U, which is 1.00727, and इसका अप्रोक्सीमेट मास है 1। लास्टली हमारा न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल, तो इट इज N। एब्सोल्यूट चार्ज इसका कुछ है नहीं, कोई चार्ज नहीं, तो 0 है। रिलेटिव चार्ज भी इसका 0 है, क्योंकि अगर ये अनचार्ज है तो उसका कोई चार्ज ही नहीं है। सो ऑब्वियसली एब्सोल्यूट चार्ज, रिलेटिव चार्ज, एवरीथिंग इज 0। मास का ही इसका मेन कंट्रीब्यूशन है, सो दिस मास इज 1.67493 into 10 to the power minus 27, ऑलमोस्ट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन बट स्लाइटली हेवियर, बहुत ही स्लाइटली हेवियर। The mass in U is 1.00867, slightly heavier, and approximate करें तो 1. So this is the comparison table between electron, proton and neutron. So proton ही एक है which is contributing to both. It is contributing to the atomic number and it is contributing to the mass number. इसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट ये मास पे कंट्रीब्यूट नहीं करते क्योंकि इनका अपना मास ही बहुत कम होता है, सो देयर कंट्रीब्यूशन इज वेरी लेस एंड उसको इग्नोर कर दिया जाता है। And then there is neutron that does not interfere with the charge of an atom, but it contributes to the mass number of an atom only. So these are the fundamental subparticles of an atom. So we have studied their discoveries and their properties, and we have summarized them in this table. आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू ऑल। यहाँ पे हमने बहुत कुछ डिस्कस किया एनोड रेज के बारे में, वहां से कैसे प्रोटॉन्स आए, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी के लिए क्या नीड थी, व्हाई डिड वी नीड टू डिस्कवर न्यूट्रॉन्स। आई होप ऑल ऑफ इट इज क्लियर टू यू नाउ। आई होप आई हैव made you understand all this in an interesting way. This is a lot of information. This is mostly scientific history. ये एक हिस्ट्री का ही पार्ट है, but it involves science, so it is a scientific history. So I hope this was informative and interesting for you all to study. Thank you so much.
I would like to request you all to join our World of Mentis Galaxy, where you will get regular classes and some fun content in shorts and reels. And we will obviously have problem solving sessions to clear your doubts. I would like to request you all to please subscribe to our YouTube channel and follow our Instagram page for more updates. Thank you for being a part of Mentis Galaxy. If you haven't subscribed already, please subscribe to our YouTube channel. Thank you so much.